Okay, let's start. So audible? Yes. अगर मेरा साउंड नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो. ओके. So screen is visible to all. Yes. Okay. चलो let's start then. So from today onwards, we are going to start our new batch. The batch name is PT13. Okay. So PT13 बोल रहा हूँ मतलब Python Testing 13. PT13. So in this batch, we are going to start our actual course with the help of Python. So Python अगर किसी को नहीं पता है, no problem. If you are belong from the Python background, then that is also fine for me. So batch name is a Python automation. और जो मार्केट में चल रहा है सर, from 2025, the market demand AI, artificial intelligence. So Python automation and AI tools. So today only we will discuss कि actual में course syllabus क्या होगा, duration of course क्या होगा. If you know the step up learn, अगर step up learn के बारे में पता है तो step up learn क्या करता है, step up learn के अंदर different courses कौन से होते हैं, then who is going to take this course, trainer कौन होगा. And if you have any doubt regarding the course syllabus, regarding the duration, regarding the time, and one more thing, सर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद व्हाट अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो भी आज आपके माइंड में डाउट होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. बिकॉज एक्चुअल सिलेबस विल स्टार्ट फ्रॉम द टुडे टुमारो, बट आज बस बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट सेशन, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एवरीवन इज अ न्यू कैंडिडेट्स हियर, जो डिफरेंट रेफरेंस से बिलोंग करते, जो डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते, कोई वर्किंग कैंडिडेट होगा, कोई नॉन वर्किंग कैंडिडेट होगा. So whatever the questions you have, that question we will discuss first, and then we will start. So PT13 is my batch name. PT means Python testing, batch number 13. So already 12 batches are going on. I think 11 batch are completed and 12th batch is going on, जो भी automation side में work कर रही है. So the question that we will come with the course syllabus क्या होगा सर. मैं फर्स्ट मेरे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे हैं आज. अगर आपके कुछ क्वेश्चन है सो you can also add your question. So duration of this course, duration क्या होगा, and again very important, time, daily होगा, weekly होगा, weekend में होगा, what are the time spent, what is the duration of course, daily time क्या होगा, fees. Regarding the fees you can discuss with the institute, because I am not the right person to discuss here regarding the fee structure, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग. तो किससे डिस्कस करना है उसके बारे में भी मेंशन करूंगा. सर अगर मैं PT13 बैच करना चाहता हूं तो मुझे प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट्स. प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट मतलब कि मेरे पास कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए कि आगे जाके मैं इस बैच को अटेंड कर सकता हूं. तो फॉर दिस PT13, अगर आपको इंस्टीट्यूट का नाम नहीं पता होगा तो आई एम मेंशनिंग द नेम, स्टेप अप एंड लर्न. सो दिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन पुणे साइड एंड आल्सो इन हैदराबाद. ठीक है, पुणे में कहां पे, करवेनगर साइड. द ट्रेनर प्रोफाइल, ट्रेनर कौन होगा सर फॉर दिस वन, हु इज गोइंग टू ट्रेनर. So I will going to take whole sessions from today onwards to the end of the course. So my name is Vaibhav Bhaviskar, and from Python side, from manual side, API side, UI side, whatever the technologies we are using in industry, उसके बारे में मैं ही डिस्कस करने वाला बोल रहा हूँ. Okay, because see from first day I mentioning this one कि session should be the interactive. दोनों साइड से सेशन होने चाहिए, कैंडिडेट के साइड से भी एंड ट्रेनर के साइड से भी. अगर सेशन इंटरैक्टिव है तो पाइथन लैंग्वेज आप एंजॉय करोगे.
ऑटोमेशन आप एंजॉय करोगे, एआई टूल्स यू आर गोइंग टू एंजॉय। सर व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड, आईटी ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द आईटी डिमांड्स। Till the 2022, the demand was different, but after Corona, the demand is increased. कि everyone should understand the programming language. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ, या तो आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, .NET, C#, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। दैट इज द मार्केट डिमांड। और मार्केट में 2025 से एक टर्मिनोलॉजी चल रही है, कौन सी रे? एआई। किसी को भी जाओगे मार्केट में, आप जाओगे तो कोई भी यही बोलेगा कि अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो एआई कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ऑल्सो वी आर थिंकिंग कि एआई विल रिप्लेस अवर जॉब। नो, एवरीवन इज थिंकिंग कि सर आईटी इंडस्ट्री में एआई 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 आने वाला है तो जॉब रिप्लेस होंगे। इसका आंसर मैं अभी आज ही देने वाला हूँ कि जॉब रिप्लेस होंगे, कि इंजीनियर्स रिप्लेस होंगे, कि वॉट एवर द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन उसको रिप्लेस किया जाएगा, व्हाट इज द ऑटोमेशन गोइंग ऑन उसको रिप्लेस किया जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास एआई आने वाला है मार्केट में तो एआई विल नॉट रिप्लेस एनीवन। हाँ, आप उसको रिप्लेस करोगे जिसके पास एआई के स्किल सेट है। आई विल शोकेस द स्टेटमेंट ऑफ एआई फाउंडर, जिसने मेंशन भी किया था कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करने वाला है, बट जो एआई टूल्स यूज करेगा वही आपको रिप्लेस करने वाला है। सर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कैन वी गेट द जॉब, एंड व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज वी हैव? सर कोर्स कंप्लीट करने के बाद व्हाट इज द सपोर्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव? In Step Up Learn, my roles responsibility is technical side. I will support you technical side. Placement side, resume writing side, we have the separate team. They are going to support you for writing the resumes, to create your Naukri profile, to create your LinkedIn profile. Again, sir, I am not belong from the IT background. I am not belong from the computer background. So what to do? Sir, I don't know the Python. I don't know the language. What to do? जो भी आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स पहले हम कलेक्ट करते हैं, देन ओनली विल स्टार्ट विद आवर सेशन। यस, अगेन एनीवन? इसमें से अगर कुछ मैंने मिस किया है तो आप मेंशन कर सकते हो। देन आई विल पिक वन बाय वन। यस यस, एवरीवन ऑडिबल? अरे दिस इज द मॉर्निंग सेशन, नो? ऑडिबल टू ऑल? यस सर। यस। आपके माइंड में कुछ डाउट होंगे तो प्लीज लेट मी नो। आई विल राइट डाउन ऑल द डाउट हियर एंड देन we'll डिस्कस ईच एंड एवरी डाउट एंड we'll डिस्कस एक्चुअल सिलेबस, एक्चुअल कोर्स, व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी इन ऑन ऑल द थिंग्स। यस सर, जो भी आप पढ़ाने वाले हो क्या वो कोर्स मार्केट डिमांड को एक्सपेक्ट करता है? माय आंसर इज यस। माय आंसर इज यस, बिकॉज जो भी मैं कोर्स डिजाइन करता हूं फॉर एवरी बैचेस, नॉट फॉर PT13, जितने भी बैचेस मैंने स्टेप अप लर्न और आउटसाइड द स्टेप अप लर्न और 2016 से जितने भी बैचेस लिए उसका सिलेबस में एक्चुअल जॉब प्रोफाइल से मैच करवाता हूं। आज जो बोल रहा हूं वही लाइन में लास्ट डे को ही बोलने वाला हूं, ठीक है? जब मेरा कोर्स कंप्लीट होगा उस लास्ट डे को भी मैं सेम ही लाइन बोलने वाला हूँ। सर आपने जो कोर्स डिजाइन किया है, जो कोर्स आप पढ़ाने वाले हो, क्या वो कोर्स मेरे फ्यूचर के लिए यूजफुल है? बिकॉज आई नो कि जो भी कोर्स ज्वाइन करने वाला है वो जॉब के लिए ही ज्वाइन करने वाला है। नो वन इज हियर टू टेक द अंडरस्टैंडिंग, टू टेक द नॉलेज फ्रॉम दिस कोर्स। तो मुझे जॉब चाहिए इन फ्यूचर, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 5 मंथ मुझे स्विच करना है, आईटी इंडस्ट्री में एंटर करना है, आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना है।
तो आपने जो कोर्स डिजाइन किया है पाइथन ऑटोमेशन एआई टूल्स, क्या वो कोर्स मुझे हेल्पफुल होगा? उसका आंसर यस। क्यों यस बोल रहा हूं? ऑलरेडी आई प्लेस 300 प्लस स्टूडेंट इन स्टेप अप लर्न। स्टेप अप लर्न की बात कर रहा हूं। अगर आप ऑल दी बैचेस की बात करोगे तो दैट इज द सेपरेट काउंट, बट रिसेंट काउंट पाइथन ऑटोमेशन फ्रॉम माय ट्रेनिंग स्टेप अप लर्न आउटसाइड, तो 300 plus candidate already I have placed in IT industry with good CTCs. Good CTC बोल रहा हूँ, सेकंड डिजिट 10 LPA, 20 LPA, 30 LPA, 7 LPA, 6 LPA। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑलरेडी दिस प्रोसेस वी फॉलो। हमें बस एक ही प्रोसेस फॉलो करनी है सर, फ्रॉम डे 1। जो चीजें मैं यहाँ पे कोर्स में मेंशन करने वाला हूँ वही चीजें आपको फॉलो करनी है। आप यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी कहाँ पे जाओगे तो आपको सेम मिलेगा। उसके बियॉन्ड सिलेबस हमने प्रिपेयर करके रखा है। जो आईटी इंडस्ट्री नेक्स्ट 2 ईयर को एक्सपैंड कर रही है, जो नेक्स्ट 2 ईयर का एक्सपेक्टेशन है, दैट एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी वी कंप्लीटेड। चलो, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो। आई विल गो विथ वन बाय वन टॉपिक टुडे's discussion. Course is designed for total 4 month। 4 month बोल रहा हूं, but it will extend to 5th month। फर्स्ट डे को ही कंसिडर करो 5 मंथ। एंड इन स्टेप अप लर्न अगर आप कोई भी ऑटोमेशन की बैच को रजिस्ट्रेशन करते हो, कोई भी ऑटोमेशन बैच को आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हो, तो मैंने स्टेप अप लर्न में ऑल द कैंडिडेट्स को एक बेनिफिट दिया है कि यू कैन अटेंड एनी बैचेस। पाइथन ऑटोमेशन क्या सर? PT13 आफ्टर 2 month, PT14 will be there, you can attend that batch also। क्योंकि मेरे लिए टोटल 10 कैंडिडेट्स है, 10 कैंडिडेट्स को भी टीचिंग सेम ही है, 20 कैंडिडेट्स को टीचिंग सेम ही है। यू कैन अटेंड एनी बैच टिल द प्लेसमेंट। एंड अगेन वन बेनिफिट जो मैं हर एक बैचेस को देता हूं कि लाइव लेक्चर्स आपके पास होंगे, लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डिंग्स होंगे। अगर आपने सेशन मिस किया है तो यू कैन गो विद द रिकॉर्डिंग्स प्लस नोट्स। कुठल्या नोट्स असतील? डेली नोट्स। आई विल गिव यू द डेली नोट्स। जो मैं सेशन कंडक्ट करता हूं तो हर एक बैचेस के नोट्स अलग होते हैं, हर एक बैचेस के लिए मैं डेली नोट्स कंडक्ट करता हूं। क्या दिस सिलेबस जो आपने डिजाइन किया है वो मैच करवाएगा इंडस्ट्री से? यस, आई विल मैच टुडे इटसेल्फ। आई विल टेल यू कि सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। वही सिलेबस में जॉब प्रोफाइल, लाइव जॉब प्रोफाइल से मैच करवाऊंगा। बिकॉज सी, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो देयर इज नो वन कि कोई भी कोर्स अटेंड करेगा। I know कि every candidates is coming for attending the course for their future, for their jobs। सर ने कोर्स कंप्लीट कर दिया बट जॉब ही नहीं है, तो नो वन विल अटेंड माय कोर्स, नो? yes or no? Audible? yes, please response। yes, audible। आवाज येतोय? yes sir, Yes, sir. yes say please, because ये क्यों बोलता हूँ बीच बीच में? दिस इज द लाइव लेक्चर्स, नो? समटाइम्स इंटरनेट इशू, समटाइम्स सिस्टम इशू, माइक इशू, वॉइस नहीं आ रहा है, आपके साइड में प्रॉब्लम है, मेरे साइड में प्रॉब्लम है। सो लाइव लेक्चर्स में यही चीजें होने वाली है। अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है प्लीज लेट मी नो कि सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप जो चीजें आप डिस्कस कर रहे हो वो चीजें हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही। डाइजेस्ट इन द सेंस अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। अगर if you are facing this type of issue, please let me know। so let's start the actual discussion
कि स्टेप अप लर्न क्या करता है, स्टेप अप लर्न के बारे में फर्स्ट डिस्कस करूंगा. So hope the idea is clear. Your batch name is a PT13, batch number 13. Course syllabus will be the same for PT1, PT2, PT3. All the batches course syllabus is the same, but as per the market standard, जो market को required है वो मैंने इस course में add किया है. That is nothing but the artificial intelligence. उसके बारे में भी discuss करूंगा कि artificial intelligence क्या होता है. मार्केट में दो टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलते हैं, जेन एआई, एजेंटिक एआई. जो एजेंट भी क्रिएट करता है, जेन एआई आपको इंफॉर्मेशन क्रिएट करके देता है. उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. द फर्स्ट वन अबाउट द स्टेप अप लर्न. सो इट इज वन ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टेड इन 2018. स्टेप अप लर्न. Before that, there is a separate institute, CLC, Concept Learning Center, which is started in 2014. Founder is the same, okay? Founder member is the same. CLC के जो founder member है, उन्होंने ही CLC का नाम change करके Step Up Learn कर दिया. But actual name is started from 2018. And this is one of the training institute, and the institute focus is based on the industrial training. Okay, सर आप कॉलेज लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो क्या? नो, इंडस्ट्रियल लेवल ट्रेनिंग. बिकॉज आगे जाके आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आई बिलीव कि एवरी कैंडिडेट शुड वर्क इन इंडस्ट्री. सर इंडस्ट्री क्यों बोल रहे हो? बिकॉज मेरा फोकस ही वही है. माई फर्स्ट फोकस इज प्लेस ईच एंड एवरी कैंडिडेट. एंड अगेन वन मोर थिंग, जो भी मेरे बैच में एडमिशन लेता है तो मैंने फर्स्ट क्लियर यही किया है कि मैं फर्स्ट कैंडिडेट को यही पूछता हूं कि आप किसके रेफरेंस के थ्रू आए हो. विदाउट रेफरेंस में एडमिशन नहीं लेता. और इंस्टीट्यूट आल्सो नॉट अलो, बिकॉज वी आर वर्किंग हियर फॉर द प्लेसमेंट साइड, वी आर वर्किंग हियर फॉर द फ्यूचर पर्पज. दिस इज नॉट आवर बिजनेस. मैं फर्स्ट डे को ही मेंशन कर रहा हूं, ये मेरा भी बिजनेस नहीं है, इंस्टीट्यूट का भी नहीं बिजनेस है. Because I am working in industry. This is my passion, to teach the candidate, to train the candidate, to place the candidate in industry. कोर्स कौन कंडक्ट करने वाला है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा. अगर स्टेप अप लर्न के बारे में आपको फिर से डिटेल में देखना है, सो वी हैव आवर ऑफिशियल वेब एप्लीकेशन. गूगल पे जाके आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो. गूगल पे जाके आप उसके बारे में सी आउट कर सकते हो. स्टेप अप एंड लर्न वेब एप्लीकेशन, जहां पे आपको ऑल द इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्टेप अप लर्न क्या करता है. एंड दिस स्टेप अप लर्न इज स्टार्टेड विद द इंडस्ट्रियल ट्रेनर. जो भी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है उनकी एक टीम बना के उन्होंने एक स्टेप अप लर्न एप्लीकेशन और स्टेप अप लर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है. एंड वी ट्रांसफर all the fresher into the IT industry. First one. Second, our main aim is to transfer the non-technical candidates to the IT background. कौन से कोर्सेज स्टेप अप लर्न के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं? Azure डेटा इंजीनियर, GCP डेटा इंजीनियर, फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट, Selenium with Java for automation purpose, React.js, Appium, मोबाइल टेस्टिंग के लिए Appium यूज किया जाता है. Python with data science and machine learning. और जो मेरा कोर्स है Python सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विद द Python, ऑटोमेशन टेस्टिंग विद द Python, full web development with Python and Django. And again, we have located in Karvenagar. We have the 3 different offices in Karvenagar. So offline candidate also visit the office. अगर आप online candidates हो तो online भी आप कोर्स कंडक्ट कर सकते हो, कोर्स को अटेंड कर सकते हो. And again, for this 2026, we started our portal जहां पे आपको कोर्सेस
रजिस्टर करना है। सी प्रीवियसली क्या होता था, PT1 टू PT13, PT12 बैचेस तक, PT1 to PT12 batch, previous all the batches till the 25 courses are conducted on Google Meet. अभी आपके डेमो चल रहे तो Google Meet पे ही होने वाले। But from 2026 we launches our own tool, own portal, जहां पे आप आपके कोर्सेस, आपका अटेंडेंस, आपके मॉक इंटरव्यूज, आपके असाइनमेंट्स ऑल इन वन प्लेस आप देख सकते हो। यही वेब एप्लीकेशन पे एक ऑप्शन आता है लॉग इन टू पोर्टल, अगर आप इस पे क्लिक करोगे आई विल शोकेस कि कैसे करना रजिस्ट्रेशन एंड ऑल थिंग्स, बट टुडे ओनली आई विल डिस्कस द सिलेबस साइड। So this is our own portal. So right now current on there are two courses are going on. The first one is a QA automation, जो मेरा कोर्स है, जो मैं कंडक्ट करने वाला हूं। And again the second course is going on Azure Data Engineer and Azure DevOps Engineer. So PT13 बैच के लिए आपके पास पोर्टल है, वही सेम पोर्टल पे आपको ऑल द कोर्सेज शो आउट होने वाले हैं, वही सेम पोर्टल पे आपके रिकॉर्डिंग्स रहने वाले, वही सेम पोर्टल पे आपके बैचेस, ऑनलाइन बैचेस कंडक्ट होगी, और प्ले स्टोर में भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द वेब एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन वी डिजाइन फॉर द एंड्रॉइड मोबाइल आल्सो, फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो, फॉर एप्पल आल्सो। प्ले स्टोर में जाके आपको बस स्टेप अप लर्न सर्च करना है, स्टेप अप एंड लर्न, वहां पे एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल से। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गोइंग टू अटेंड द सेशन फ्रॉम द मोबाइल आल्सो। तो आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन है, या तो आप लैपटॉप से अटेंड करना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन आपको ओपन करना होगा, लैपटॉप से नहीं, आप मोबाइल से अटेंड करना चाहते हो तो मोबाइल से। तो दिस इज अबाउट द स्टेप अप लर्न। और जैसे जैसे आगे आप जाओगे, जैसे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कोर्स स्टार्ट होगा, एक्चुअल कोर्स, एक्चुअल डेमो स्टार्ट होंगे, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। So hope the idea is clear, and we have the team of near about 10 members, all industrial experts. And why, sir? Why we need to go with the step up plan? See, market में multiple institute available है. I will give you the number of institute in Pune, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, everywhere. But why to choose the step up plan? Why to choose the step up plan? Our first goal is step up learn. As a step up learn family, our first goal is 100% practical and industry based training. मैंने first 5 मिनट यही मेंशन किया कि हम क्या करते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे ट्रेनिंग, ओनली theoretical नहीं पढ़ाएंगे, with the help of practical, with the help of concept, each and every concept we are going to teach you. जो मार्केट डिमांड है उसके बियॉन्ड पे तो हम उस लेवल पे जाने वाले हैं। So the first one, 100% practical knowledge and industry based training we are giving, real time project implementation, जो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में ऑनगोइंग होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन हम हर एक सेशन में शो आउट करते हैं। Because I am also working in industry, my most of the friends are working in industry. और जो मैंने मेंशन किया था ना PT1 टू PT12, PT11, चलो PT12 इज गोइंग ऑन, जितने भी कैंडिडेट्स उस बैचेस में अटेंड किए वो कैंडिडेट्स आल्सो वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री। सो वी हैव दैट एक्सपीरियंस, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अगर मेरा डिफरेंट बैचेस के कैंडिडेट उस लेवल पे जा सकते तो हर एक बैच के कैंडिडेट उस लेवल को अचीव करेंगे। लाइव ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, हाँ, दिस इज द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम 2020 market demand is automation. Everywhere automation is present. रियल टाइम एग्जांपल अगर दिया गया हो, अगर सर मैं कोई भी कार बाय आउट करता हूं
इन 2019 जब मैंने एक कार बाय आउट की थी तो मैनुअल कार थी, बट आफ्टर सम डेज द कार इज मॉडिफाइड, car is developed in automation side, automatic cars, AMT cars. So market demand is a automation. Nowadays they are picking the AI. आप बोलते हो सर AI AI AI, क्या AI मेरा जॉब रिप्लेस करेगा? नो, AI will not replace your job. मैं फर्स्ट डे को ही कंसिडर कर रहा हूं, मैं फर्स्ट डे को ही आपको शो आउट करता हूं कि सर जो भी एआई का सीईओ है उसका मैं स्टेटमेंट भी आपको शो आउट करता हूं कि एआई सीईओ का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। देखो, सैम इज अ सीईओ ऑफ दिस एआई, एआई विल नॉट रिप्लेस द ह्यूमन, बट ठीक से देखना है, बट ह्यूमंस हु यूज एआई विल रिप्लेस दोज हु डोंट. मार्केटमध्ये ह्या गोष्टी तुम्ही बाहेर जातात, तुमचे रिलेटिव्ह आयटी इंडस्ट्रीमध्ये वर्क करतायत, तर सर्व लोक तेच म्हणतात एआय येतंय, रिप्लेस विल. नो, नो वन इज गोइंग टू रिप्लेस यू. अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आपको एआई यूज करते आता है, तो यू विल रिप्लेस द इंजीनियर दोज डोंट नो द एआई. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सीईओ. यूट्यूब गूगल पे भी आप देख सकते हो, यही स्टेटमेंट है. क्या एआई मेरा जॉब रिप्लेस करेगा? नहीं. मैं 2018 से आई एम वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, तो मुझे पता है कि आईटी इंडस्ट्री के मार्केट ट्रेंड्स क्या है. ऑडिबल? यस, ऑडिबल टू ऑल. यस सर. ठीक है. आपके माइंड में अगर अभी भी चल रहा है सर एआई मुझे करना है, अरे एआई आई विल टेल यू, एआई में क्या चीजें आई विल टीच यू इन माय सेशंस. प्रैक्टिकल साइड दैट इज फाइन, प्रैक्टिकल साइड आल्सो आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट द एजेंट, हाउ टू डील विद द एआई. जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो ना, दैट इज आल्सो वन एआई, एलएलएम टूल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. बट चैट जीपीटी जेनेरिक है, जेनेरिक. ऑल द सॉल्यूशन चैट जीपीटी पे प्रेजेंट है. बट आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो ऑटोमेशन का एआई अलग है. आपको मैनुअल से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो मैनुअल का एआई अलग है. ये सब का कॉम्बिनेशन चैट जीपीटी के पास प्रेजेंट है. मैं मोस्ट ऑफ द बैचेस को एग्जांपल भी देता हूं. चैट जीपीटी हर कोई यूज करता है, जीपीटी नो, जनरल, इसके पास ऑल द इंफॉर्मेशन है. दिस इज वन जनरल डॉक्टर नो. आप विलेज में रहते हो, वहां पे एक ही डॉक्टर होता है विलेज में, कि आपको अगर कुछ हो रहा है सर, देर इज सम मेडिकल इमरजेंसी, तो आप डायरेक्टली वो जनरल डॉक्टर के पास जाते हो. बट नाउ डेज डॉक्टर्स के भी डेफिनेशन, डॉक्टर्स को भी डिवाइड कर दिया है. सर्जन वाला डॉक्टर अलग है सर, कार्डियो, अगर किसी को कार्डियो का प्रॉब्लम है तो कार्डियो का डॉक्टर अलग होता है, गायनोकोलॉजिस्ट है तो गायनोकोलॉजिस्ट का डॉक्टर अलग है. तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, based on the problem statement, we are going to work with the different tools. ऑटोमेशन के लिए जो डिफरेंट टूल्स मैं यूज करने वाला हूं थ्रू आउट द कोर्स, उसके बारे में मैं इस सिलेबस में डिस्कस करूंगा. जनरल टूल्स अगर यूज करने तो जीपीटी, जेमिनाई आल्सो देयर. जो जनरल इंफॉर्मेशन देती, देयर इज नो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आप जीपीटी को अगर पूछोगे कि व्हाट इज द पाइथन, वो ऑल इंफॉर्मेशन दे देगा. बट अगर आपको स्पेसिफिक टू ऑटोमेशन व्हाट इज द पाइथन वो पूछना है तो आपको डिफरेंट टूल पे वर्कआउट करना होगा. सो ऑल द टूल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इनसाइड दिस कोर्स. अगेन रियल टाइम लाइव ऑटोमेशन दैट वी विल डिस्कस हियर. कॉर्पोरेट लेवल कोडिंग स्टैंडर्ड जो कॉर्पोरेट में फॉलो किया जाता है, जो आईटी इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है, वही कोडिंग स्टैंडर्ड में हर एक सेशन में फॉलो करता हूं. अगर आपको इसमें कुछ डाउट है ना सर, कि आप जो आज बोलने वाले हो कि यही करने वाले हो, यस,
If you have doubt, you can visit my previous batches. You can ask to the candidate, सर जो आज बोलने वाला है वही करता है क्या? Yes, because this is my role's responsibility here. हाँ, मैंने फर्स्ट को ही मेंशन किया, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द कोर्स सिलेबस, प्लीज पुट मी मैसेज, प्लीज आस्क मी. हाँ, नेक्स्ट वन, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन फीस और एनी अदर डाउट, नॉन टेक्निकल डाउट, don't discuss here because I am not the right person to discuss this. There are two separate person, उसके भी मैं नंबर शेयर करूंगा जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है. टेक्निकल साइड वैभव सर विल टेक केयर from day 1 to day, from today onwards I am going to take care. Sir, why step up learn? उसका आंसर, experience industrial trainers we have. All the trainers are experienced. Then dedicated placement support. सर कोर्स तो हर कोई करेगा, बट डू वी हैव द प्लेसमेंट? यस, वी हैव द प्लेसमेंट. सर आप प्लेसमेंट दोगे क्या? उसका आंसर मैं आज ही दे देता हूँ. आप बोलोगे सर आप प्लेसमेंट दोगे, उसका आंसर नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी प्लेसमेंट. क्या बोल रहा हूँ देखो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी प्लेसमेंट बिकॉज मुझे वो गारंटी कि मेरा कैंडिडेट खुद से प्लेस होता है. वैभव सर येऊन तिथे इंटरव्ह्यू नाही देत किंवा वैभव सर येऊन एचआर ला नाही सांगत की प्लेस करा. नो, अगर आप कोर्स फॉलो करोगे तो आई विल गिव दैट गारंटी कि यू विल प्लेस आफ्टर 4 मंथ 5 मंथ यू विल गेट गुड सीटीसी जॉब. गुड सीटीसी बोल रहा हूं मतलब एटलीस्ट 2 डिजिट, 10 LPA प्लस 10 LPA. बस आपको फॉलो, लेक्चर फॉलो करना है, सेशन फॉलो करना है, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, सफिशिएंट. और जो मैं पाइथन पढ़ाता हूं ना हर एक बैचेस को, दैट पाइथन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी प्रोफाइल. इंडस्ट्री में जो 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट वर्कआउट करते हैं, उस लेवल का मैं पाइथन आपको पढ़ाने वाला हूं. 6 years एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के कैंडिडेट, वही लेवल पे जाके मैं आपको पाइथन, वही लेवल पे जाके मैं आपको ऑटोमेशन, एआई, whatever the terminologies I am mentioning today, वो सेम उस लेवल पे हम डिस्कस करने वाले. Again, if you have any doubt regarding this step up learn, so we have the 2 dedicated person, Somnath sir, Akshay sir. They will take care about the placement process, they will take care about the fees, they will take care about the registration. एनी नॉन टेक्निकल डाउट, सर मैं पास आउट हूं 2025, मुझे क्या करना है? सर मैं पास आउट हूं 2010, मुझे क्या करना है? दे विल गाइड यू. हाँ, आपल्या लेक्चर मध्ये लाइव लेक्चर, दिस आर द रेकॉर्डिंग्स, नो, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ सिनारियोस. टेक्निकल साइड, इफ यू हैव एनी डाउट टेक्निकल साइड, so I am available. Vaibhav Vaskar, automation trainer. From today I will conduct this batch. Again, सर आप जो बता रहे हो, सर जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है. नो वरीज, फर्स्ट डे है, कुछ ओवरलोड होगा, फर्स्ट डे है, कुछ चीजें आपकी अंडरस्टैंड नहीं होगी, बट जैसे जैसे आप इस कोर्स को अंडरस्टैंड करोगे, जैसे जैसे आप थ्रू आउट द कोर्स इनसाइड जाओगे, तो हर एक चीज आपकी क्लियर होगी. आज तो मैं टेक्निकली नहीं पढ़ाने वाला हूं, आज बस मैं डिस्कस कर रहा हूं कि हमें क्या करना है, क्या चीजें फॉलो करनी है. कोर्स डिजाइन फॉर नियर अबाउट 60 लेक्चर्स, 60 डेली लेक्चर्स, 1 hour, मिनिमम 1 hour बोल रहा हूं, but it goes to the 1.30 minutes. So these are our team for the automation. These are the 2 common persons that are available for all the courses, Somnath sir, Akshay sir. And automation trainer,
ठीक है, चलो। तो सर जो कोर्स कंडक्ट करने वाला है ऑटोमेशन ट्रेनर, उसकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करता हूँ। मीन्स आई एम गोइंग टू टेक केयर अबाउट द होल कोर्स। सो एज आई मेंशन, माय नेम इज वैभव आविष्कर. So I have total 8 years of IT experience, and in training field I have total 6 years of experience. ट्रेनिंग फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग में प्रोवाइड करता हूँ पाइथन ऑटोमेशन की, तो आई हैव टोटल 6 years of experience and I am working in one of the industry as a senior technical lead. So from last 8 years I am working in industry. प्रीवियसली काय होत होतं, प्रीवियस बैचेस वहां पे क्या होता था कि सिलेबस इज स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट पार्ट, और एक ही ट्रेनर और मल्टीपल ट्रेनर सिलेबस कंडक्ट करते थे. लाइक द पाइथन विल कंडक्ट बाय वैभव सर, मैनुअल अदर ट्रेनर, डेवऑप्स अदर ट्रेनर, ऑटोमेशन अदर ट्रेनर. बट दिस PT13 only one trainer, he is going to conduct this whole syllabus from day 1 to day last day for 4 months. So my profile I will discuss here. I have total 8 years of experience in the development and automation and working as a senior technical lead in one of the MNC company in Pune only. And total 6 years of training experience. As I mentioned, I placed the 300 plus candidates as an automation engineer. Experienced candidate. No? This count is not for the fresher. Fresher to different count है. एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करो, ओनली ऑटोमेशन इंजीनियर्स, नॉट टॉकिंग अबाउट होल इंस्टीट्यूट, इट्स ओनली फॉर द ऑटोमेशन इंजीनियर्स. एंड आई एम द सर्टिफाइड टेस्ट इंजीनियर, सर्टिफाइड पाइथन इंजीनियर, एंड इन स्टेप अप लर्न आई एम वर्किंग एज अ प्लेसमेंट सेल हेड. बिकॉज जो भी प्लेसमेंट होते हैं फ्रेशर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे, वो आपको गो थ्रू करूंगा थ्रू माय ईमेल एड्रेस, थ्रू माय मोबाइल नंबर, और जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट्स आते हैं वो सेम रिक्वायरमेंट मेरे पास में हैंडल करता हूँ. देन ओनली आई एम प्रोवाइडिंग द प्रोफाइल टू द इंडस्ट्री, and then there is a separate we can say the step by step process that you need to follow. Again, if you have any doubt, please let me know. Audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. द रोड मैप इज वेरी क्लियर. सी, कल को जाके सर मुझे इंडस्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री में वर्कआउट करना है, तो आपको रोड मैप पता होना चाहिए, आपको गाइडलाइंस पता होनी चाहिए. तो वो रोड मैप, वो गाइडलाइंस, टेक्निकल साइड, आई एम द रिस्पॉन्सिबल. आई एम द रिस्पॉन्सिबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लास्ट में जाके अगर आपका 100% मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे ही ब्लेम करोगे, वैभव सर ने नहीं पढ़ाया, वैभव सर ने बस सिलेबस कंप्लीट किया है, तो ब्लेम मेरे पे ही आने वाला है. तो इसलिए मैंने फर्स्ट डे को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि आई एम गोइंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल साइड. और आज जो मैं जिस लेवल पे जाके डिस्कस कर रहा हूं वही सेम लेवल आपको लास्ट सेशन में भी दिखेगा. ऐसे नहीं है कि सर आज जो डिस्कस कर रहे हैं वही वर्ड सर सेकंड सेशन में चेंज कर देंगे. नो, द सेम स्टेटमेंट आई विल यूटिलाइज फॉर द लास्ट सेशन आल्सो. टोटल 60 सेशन के लेक्चर्स होंगे. 60 सेशंस. इस 60 सेशंस में आपको मैं उस लेवल पे लेके जाऊंगा कि आप एटलीस्ट 6 years एक्सपीरियंस के जो कैंडिडेट है ना, उस लेवल पे जाके आप काम करोगे. and every session is helpful. सर जाऊन त्या सेशन मध्ये स्टोरी सांगत नाहीत. प्रीवियस बॅचेसला माहिती असेल, 1 hour सेशन, 1 hour इज अ टेक्निकल सेशन ओनली. देर इज नो नॉन टेक्निकल चीजें मैं नहीं डिस्कस करता हूँ. नाही तर तुम्हाला असं वाटेल की सर 60 सेशन आहेत, सर 2 hours सेशन घेऊन तिथं मूवीची स्टोरी सांगतील. नाही, ते माझं कामच नाहीये. 2 hours, नो, होल 2 hours आई विल टेल यू द टेक्निकल साइड. जितना नॉलेज मेरे पास है वो सब नॉलेज में डिलीवर करता हूं. मेरे पास कुछ नहीं रखता हूं मैं. जितना भी नॉलेज आई हैव गेन
इन दिस 8 years, इंडस्ट्रियल 8 years, ट्रेनिंग 6 years, जो भी नॉलेज मेरे पास है वो सब नॉलेज मैं कैंडिडेट को दे देता हूं। मैंने फर्स्ट ही मेंशन किया, दिस इज नॉट माय बिजनेस। तो अगर वैभव सर इस सेशन की वैल्यू करेगा तो कैंडिडेट से भी वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज जब तक आपको वैल्यू नहीं होगी, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक आप सिलेबस में एंटर नहीं होगे। इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंटरेस्ट लेके ये मेरा सेशन अटेंड करना है, एंड ऑल द सेशन शुड बी द इंटरैक्टिव। मैं फर्स्ट डे को ही मेंशन कर रहा हूं, ऑल द सेशन शुड बी इंटरैक्टिव, क्योंकि आफ्टर 5 months you are going to attend the interviews. इंटरव्ह्यूला तुम्हालाच बोलायचंय, इंट्रोडक्शन तुमचं स्वतःच तुम्हाला द्यायचंय, त्याची प्रिपरेशन 99% आई विल गिव गारंटी, जो मेरे सेशन में होगा उसमें से ही आपका इंटरव्यू क्रैक होने वाला है। गॅरंटी पहिल्याच दिवशी मी देतो प्रत्येक बॅचेसला। जो भी मैं सेशन में डिस्कस करूंगा उसमें से ही आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। एनी इंस्टीट्यूट, एनी इंडस्ट्री में चले जाओ आप, पुणे, महाराष्ट्र, आउटसाइड इंडिया, कहां पे भी चले जाओ, उसमें से ही आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। आपके पास ऑल द डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ऑल द डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। क्या लेना है सिलेबस में, क्या अप्रोचेस फॉलो करनी है, मेरा कैंडिडेट प्लेस कैसे होगा, वो सब चीजें मेरे पास रेडी है। जब आपका पाइथन स्टार्ट होगा, एपीआई स्टार्ट होगा, ऑटोमेशन स्टार्ट होगा ना, सो दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे जाके आप स्टडी करने वाले हो। आज 0 कॉन्फिडेंस है, नो वरीज, आफ्टर 10 सेशन आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज फर्स्ट 10 सेशन में पाइथन स्टार्ट ही नहीं करता हूं, मैं बस आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। क्या बोल रहा हूं? बेसिक मैथमेटिक्स, प्री रिक्विजिट आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। जे आपण 10th and 12 ला लर्न केलेलं आहे, महाराष्ट्र बोर्ड और वॉट एवर द बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उसमें जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, वही आपको आना चाहिए। बस खत्म। नेक्स्ट पार्ट आई विल टेक केयर, कोडिंग साइड आई विल टेक केयर, आई विल ट्रेन यू इन कोड, आई विल ट्रेन यू इनसाइड द लॉजिक बिल्डिंग। ईच एंड एवरी टॉपिक प्रैक्टिकली होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। सर आप तो अभी तो आपने बोला कि ईच एंड एवरी टॉपिक प्रैक्टिकली होगा। यस, वही होने वाला है। आणि प्रॅक्टिकली नाही झालं तर तुम्ही त्याच सेशन मध्ये मला सांगणार आहे, सर हे झालंच नाही प्रॅक्टिकली। हाँ, मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों चीजें डिलीवर कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा कैंडिडेट सेशन अगर अटेंड कर रहा है तो एटलीस्ट 50% उसको अंडरस्टैंड होगा। एटलीस्ट बोल रहा हूँ 50%, 100% तो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें से 50% आपको अंडरस्टैंड होगा तो खत्म कहानी, बस यही चाहिए। चलो नेक्स्ट लेवल। So this is about the trainer. So the same trainer will going to conduct whole end-to-end course from first day to the last day. Same trainer is there. ट्रेनिंग विल अवेलेबल ऑन द LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेप अप लर्न का है, वहां पे ही आपके रिकॉर्डिंग्स आएंगे, वहां पे ही आपके नोट्स आएंगे। सर व्हाट इज द कोर्स? आप कब से डिस्कस कर रहे हो कि कोर्स कोर्स कोर्स, ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन, एआई एआई एआई, तो उसमें क्या होने वाला है? कोर्स में क्या चीजें होने वाली है, प्लेसमेंट सपोर्ट क्या मिलेगा? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल स्टार्ट दिस कोर्स विद द हेल्प ऑफ पाइथन साइड लैंग्वेज। मैंने फर्स्ट यही मेंशन किया, अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री में वर्क करना है, कोई भी आईटी इंडस्ट्री में वर्क करना है, तो डिमांड इज आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन अंडरस्टैंड करेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपको पाइथन आना चाहिए सर, नो, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपकी स्ट्रांग है
तो आप कोई भी आयटी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो. मार्केटमध्ये अशा लँग्वेजेस आहेत, C++, जावा, .NET, C#, पाइथन, R लैंग्वेज, गोलैंग लैंग्वेज. इसमें से मैं पाइथन पढ़ा था. पाइथन क्यों? इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड. Beginners can start with their career with the Python. It is simple to understand. Open source है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कहां पे भी रन कर सकता है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप चला सकते हो. So we'll start our actual syllabus with the help of Python, जो लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ. यहाँ पे तो मैंने 25 सेशन मेंशन किए, बट इट विल गोज टू द 30+ सेशंस. ओके, 30+ क्यों? Because during that one there is a revision session, during that one there is a interview questions, interview discussion, all. सर ये जो 30 सेशंस आप लेने वाले हो ना, एक्चुअल पाइथन सिलेबस आप बाहर मार्केट में जाओगे, एनी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो पाइथन सिलेबस 10 आवर्स का होता है. बट उस 10 आवर्स को मैं आपको 60+ आवर्स पढ़ाने वाला हूं. हाँ, इस सेशन को डिवाइड किए हैं. फर्स्ट 10 सेशंस इज ओनली द फंडामेंटल. सर आप अगर आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो तो फर्स्ट 10 सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. कि व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द फंडामेंटल. बिकॉज जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक मैं पाइथन स्टार्ट ही नहीं करता हूं हर एक बैचेस को. फंडामेंटल क्लियर नसतील तर मी पायथॉन स्टार्ट करत नाही. 10 सेशन म्हणतोय, त्याच्यात तुमचे फंडामेंटल ऑपरेटर्स, लूपिंग कन्सेप्ट, इफ एल स्टेटमेंट्स, डेटा टाइप, मग ऍक्च्युअल पायथॉन स्टार्ट होतो फ्रॉम द फंक्शनल प्रोग्रामिंग. सो नियर अबाउट 10 सेशन वी विल अंडरस्टैंड कि पाइथन क्या होता है, पाइथन का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, लैंग्वेज को यूज क्यों करना है. और सेम पाइथन आप डेवलपमेंट में भी यूज करते हो, सेम पाइथन आप मशीन लर्निंग में यूज करते हो, डेटा साइंस में यूज करते हो, सेम पाइथन आप एआई में यूज करते हो. यूट्यूब जब डेवलप किया गया तो उसको भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पे इंप्लीमेंटेशन हुआ है. इंटरनली पाइथन ही इंप्लीमेंट किया गया है जो आप एप्लीकेशन यूज करते हो यूट्यूब का. बट इन आवर केस वी आर गोइंग टू लर्न द पाइथन एट एक्सपर्ट लेवल. उसके बेसिस पे हम ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट नियर अबाउट 2 मंथ वी विल डिस्कस द पाइथन. पहिल्या 2 मंथ फक्त पायथॉन पायथॉन पायथॉन. डेली हा वर्ड येणार आहे, डेली कन्सेप्ट येणार आहेत, डेली लैंग्वेज म्हणजे काय हे येणार आहे. आपको लाइव लेक्चर भी अटेंड करने, रिकॉर्डिंग्स भी देखना है, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए. नोट्स आई विल प्रोवाइड, बट आपके खुद के भी नोट्स आपके पास होने चाहिए. क्यों नोट्स बोलता हूं? इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद आपको हेल्प आपके नोट्स ही करेंगे. कारण मी म्हटलो टोटल सिलेबस 60 सेशनचा आहे. तुमचे इंटरव्यू शेड्यूल झाला ना तर 2 डेज 3 डेज 10 डेज मध्ये हे सेशन कंप्लीट होत नाहीत. रेकॉर्डिंग 10 दिवसात कंप्लीट होत नाहीत. तेव्हा तुम्हाला तुमचे नोट्स हेल्प करणार आहेत. मॉक इंटरव्यू तो सेशन में लेता ही हूं मैं बीच बीच में. फॉर एवरी मंथ यू आर गोइंग टू अटेंड द मॉक इंटरव्यूज. 5 मॉक इंटरव्यूज हर एक बैचेस को होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल मॉक इंटरव्यू. चलो, so the first we'll start with the Python side, then we'll jump to the manual testing. फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग. टेस्टिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या किया जाता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग क्या है. मैनुअल टेस्टिंग सिलेबस में क्यों रखा है, उसका बेनिफिट भी है. अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, सर हमें पाइथन नहीं करना है, तो आप मैनुअल टेस्टिंग लर्न करके इंडस्ट्री में जंप आउट कर सकते हो, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ऑडिबल? यस, ऑडिबल टू ऑल. आहेत जागेवर? नाही आहेत? यस सर.
ठीक आहे. हा, जागेवरच असायचं, मध्ये मध्ये गायब व्हायचं नाही. नाहीतर काय होतं सर, सेशन सुरू झाले, घरातले काम सुरू झाले, स्वयंपाक करतायत, भांडे धुणं सुरू झालं, असं करायचं नाही. ठीक है, फर्स्ट डे से, क्योंकि मैंने वही किया है। फर्स्ट मैं वही मेंशन कर रहा हूं, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप इस कोर्स में गो थ्रू नहीं कर सकते हो, इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करना। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड नो, सो नो वन इज इंटरेस्टेड हियर। आपको इंटरेस्ट लेना है फ्रॉम फर्स्ट डे। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो आफ्टर 5 मंथ डेफिनेटली 100% you will get at least 2 offers, at least 2 offers। बाकीचे काउंटर पकड़तच नहीं, एटलीस्ट 2 ऑफर्स आफ्टर 5 मंथ। अगर आपने कोर्स में इंटरेस्ट लिया है, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो चीजें अगर आपको डाइजेस्ट हो रही है, अंडरस्टँड हो रही है, देन ओनली। सर तुम्ही जे सांगतायत ते आम्हाला समजतच नाहीये, तर फायदाच नाहीये ट्रेनरचा सांगून ना। सर आगे जाके हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स, बट जो चीजें आप पढ़ा रहे हो वही अंडरस्टैंड नहीं हो रही, तो उसका यूज ही नहीं है ना। मैंने यही मेंशन किया कि एवरीवन हियर फॉर देयर फ्यूचर, एवरीवन हियर फॉर देयर जॉब। अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है प्लीज लेट मी नो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। मल्टीपल बैचेस को मैं वही करता हूं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना सर, चलो 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो जो सिलेबस है ना, मैं किसी को ये कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं कि यू आर कमिंग फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड। मैं कंसीडर कर रहा हूं ऑल द कैंडिडेट्स आर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स, तो उस लेवल पे जाके मैं एक्चुअल कोर्स स्टार्ट करूंगा। सो मैनुअल सेशन स्टार्ट होंगे। सो आफ्टर द पाइथन, आफ्टर 2 months विल स्टार्ट विद द टेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज। मैनुअल साइड विल स्टार्ट, देन विल जंप टू द ऑटोमेशन, जहां पे मैं सेटअप करवाता हूं कि ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन का यूज कैसे करना है, स्क्रिप्ट कैसे डेव्हलप करनी है। कुठल्याही ऍप्लिकेशनला 3 पार्ट असतात, फ्रंट एंड, बैक एंड, मिडलवेयर। जो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट यूज करते हो ना, दैट इज अगेन वन वेब एप्लीकेशन। उस वेब एप्लीकेशन का ऑटोमेशन म्हणजे स्क्रिप्ट लिहिणार आपण त्याच्यावर। सो एक्चुअल स्टोरी विल स्टार्ट आफ्टर द 2 months। पहिले 2 महिने फक्त आणि फक्त आपली लैंग्वेज होणार आहे। दैट लैंग्वेज इज नथिंग बट पाइथन। सर इतना क्यों पढ़ाओगे? अरे दिस विल हेल्प यू फॉर द इंटरव्यू। 100% श्योर, मैं यही गारंटी आज ही दे रहा हूं। 100% जो मेरे लेक्चर में प्रेजेंट है वही आप इंटरव्यू में फेस करोगे। एक एग्जांपल भी देता हूं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई विल टीच यू फॉर नियर अबाउट 50 hours। 15 hours functional programming language, प्रॅक्टिकल साइड, सिनारिओ बेस, प्रोग्राम साइड, थेरॉटिकल साइड, 15 hours। आणि इंटरव्ह्यू मध्ये एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटला 2 मिनिट्सचा क्वेश्चन येतो, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन इन पाइथन, हाउ टू राइट द फंक्शन इन पाइथन। अरे जो चीजें मैंने 15 hour पढ़ाई ना, वो आपको बस 2 मिनट डिलीवर करना है, खत्म कहानी। यहाँ पे मेरा प्लेसमेंट रेशो इंक्रीज है। वाई प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, दिस इज द एक्चुअल फोकस। आप एनी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको फर्स्ट डे को यही कोई नहीं बोलेगा कि मैं प्लेसमेंट देने वाला हूं। मी पण तेच म्हणतोय, मी देत नाही प्लेसमेंट, बट आफ्टर युअर एफर्ट्स यू ओनली गेट युअर ऑफर्स। मेहनत तर करावी लागेल। झोपेतून उठून कोणी उद्या उठून 10 LPA चं पॅकेज नाही देणार आहे, मेहनत लागेल। तुमच्या सोबत मी पण मेहनत करणार आहे। असं नाहीये की फक्त सर येतील, शिकवतील आणि जातील, असं मी कुठल्याच सेशनला करत नाही। आय विल गिव्ह दॅट गॅरंटी। आणि तसं करत असेल तर तुम्ही त्याच दिवशी मला सांगू शकतात की सर तुम्ही शिकवलं, नाही समजलं, पुढे गेलेत। बिकॉज नेक्स्ट बैच मैं तब तक लॉन्च नहीं करूंगा जब तक ये बैच मेरी कंप्लीट नहीं होती। मेरे पास प्रीवियसली क्या होता था, मल्टीपल बैचेस में रन करता था।
बट नाउअडेज फ्रॉम 2026 मैंने यही मेंशन कर दिया कि जब तक मेरी 13 बैच पे मैं फोकस आउट नहीं करूंगा, जब तक मुझे 13 बैच पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक मैं न्यू बैच पे जंप आउट नहीं करता हूं. दिस इज माय फाइनल रूल. आप हर एक बैचेस कैंडिडेट को पूछ सकते हो. सिलेबस कंप्लीट करायला 10 दिवसात होतो रे. हा, त्याचा यूज नाहीये, डायजेस्ट होणारच नाही, तुमच्या डोक्यावरून जाईल गोष्टी. ठीक है, चलो. सो द मैन ऑटोमेशन साइड डिटेल में मैं कल डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें होगी, बट मैं बस आप रिवाइज कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करना हूं. एपीआई टेस्टिंग आपल्या कोर्समध्ये पायथॉन साइड होगा, टेस्टिंग साइड होगा, यूआई ऑटोमेशन, एपीआई ऑटोमेशन होगा, एआई के टूल्स होंगे. जॉब ओपनिंग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में है. मैं आपको नियर अबाउट 6 प्रोफाइल के जॉब प्रोवाइड करने वाला हूं. प्रोफाइल 7, उसमें से आपको 1 प्रोफाइल पे हिट करना है, कोई भी एक. आप पाइथन ठीक से कर लो सर, यूआई ऑटोमेशन कर लो, यू विल गो विद द यूआई ऑटोमेशन इंजीनियर, यू विल गो विद द ऑटोमेशन इंजीनियर. आप पायथॉन करोगे, एपीआई करोगे, यू विल गो विद द एपीआई ऑटोमेशन इंजीनियर. सर मला कोडिंगच करायचं नाही, मॅन्युअल टेस्टिंग करा व्यवस्थित, यू विल गो विद द मैनुअल टेस्टिंग. बट मैनुअल टेस्टिंग आगे जाके मैनुअल टेस्टिंग को रिप्लेस कर रहा है ऑटोमेशन. ठीक है. सो दिस इज द एक्चुअल कोर्स, जहां पे फिर यूआई ऑटोमेशन भी होगा. यूआई ऑटोमेशन फॉर पीटी 13 बैच आई हैव गिवन 2 ऑप्शन. ये फक्त करंट बैचला आहे. सेलेनियम इज युअर सिलेबस. सर मुझे सेलेनियम भी करना है, अगेन 1 यूआई ऑटोमेशन करना है. प्ले राइट, तो मैं इस बैच को प्ले राइट के रेकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगा. दोनच प्रकारचे ऑटोमेशन इंडस्ट्रीमध्ये चालतात यूआईचे, या तो सेलेनियम ऑटोमेशन यूआई वाला, सेलेनियम ऑटोमेशन नहीं करना है तो आपके पास प्ले राइट वाला ऑटोमेशन है यूआई के लिए. दोनों में से एक आपको करवाना हो, कोई भी एक आप कर सकते हो. या तो सेलेनियम पे जंप आउट कर दो, नहीं तो प्ले राइट पे कर दो. So you have 2 options. You can go with the Selenium, you can go with the Playwright. Again, you have the new option for the job. Previously क्या होता था, Selenium की बैचेस अलग है, एपीआई की बैचेस, Playwright की बैचेस अलग है. बट इसका दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने 2026 में लॉन्च कर दिया. लेक्चर्स आहेत आपल्याकडे, फक्त आपल्याला गो थ्रू करायचंय. सो दिस इज द यूआई ऑटोमेशन. हाँ, द इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजीज आफ्टर द ऑटोमेशन जो आपको लगेगा, गिट हब, जीरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, सीआईसीडी टूल. ये मैंने डिफरेंट स्लाइड पे क्यों मेंशन किए, दिस आर द डेवऑप्स टूल्स. जे डेवऑप्स इंजिनियर यूज करणार आहेत ते टूल्स आपण युटिलाइज करणार आहेत. कुठलं रे, गिट हब कोड रिपोजिटरी. गिटहब इज अ कोड रिपोजिटरी जहां पे मैं कोड को स्टोर करूंगा. जीरा टूल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, जीरा टूल मैं यूटिलाइज करूंगा. अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो. फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट द एक्चुअल सिलेबस. जेनकिंस, इसको मैं सीआईसीडी भी कर सकता हूं, बोलता हूं सीआईसीडी, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट. nowadays market demand CI/CD. So ये 3 tools we will discuss, and after that the very important, सर ये तो पूरा कोर्स सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, एआई भी पढ़ लिया है, पाइथन पढ़ लिया, ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग. द रियल टाइम प्रोजेक्ट. अभी यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट सर आए, पास आउट इन 2016. अभी क्या चल रहा है 2026, 10 years गैप. व्हाट टू डू, उनका सॉल्यूशन
यहाँ पे होगा रियल टाइम प्रोजेक्ट. तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की सर मी 2016 ला पास आउट आहे आणि मी जॉबच केला नाही, तर 2016 मध्ये मी फ्रेशर आहे का? नाही. फ्रेशर मीन्स 2026 पास आउट कैंडिडेट, इसको इंडस्ट्री फ्रेशर कैंडिडेट बोलती है. तो दिस रियल टाइम प्रोजेक्ट वी हैव द 5 सेपरेट सेशन, जहां पे आपको डोमेन नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे आपके पास प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा, उस प्रोजेक्ट का ऑटोमेशन आप करोगे, उस प्रोजेक्ट पे टेस्टिंग आप करोगे, उस प्रोजेक्ट पे एआई एप्लीकेशन यूज करके टेस्ट केसेस आप लिखोगे. So this is the technical syllabus, and the next part is a non-technical, that is the extra support provided by institute. Audible to all? Yes, sir. Resume preparation. टेक्निकल साइड झाल्यावर परत तुमचे प्लेसमेंट सेशन्स. Will try to create the professional resumes for each and every candidate. Mock interviews, yes, mock interviews are very important. There are total 5 mock interviews for every batches. Mock interviews important क्यों है? Because mock interviews इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्रियल पैनल ही लेने वाला है. हमारे जितने कैंडिडेट इंडस्ट्री में पैनल है, एज अ इंटरव्यू पैनल, वही आपके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा. मैं हर एक बैचेस को एग्जांपल देता हूं. क्या एग्जांपल? कि स्टेप अप लर्न के अंदर आपके 5 मॉक इंटरव्यूज हैं, और जब आप आगे जाके इन फ्यूचर मॉक अटेंड करोगे, सपोज कल को जाके मेरा एक मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया है इंफोसिस ने, तो आपके लिए फर्स्ट इंटरव्यू होगा, बट एक्चुअल जब आप उसके अंदर जाओगे ना, तो आपके लिए वो 6th इंटरव्यू होगा. बिकॉज ऑलरेडी उस लेवल के 5 इंटरव्यूज हमारे इंस्टीट्यूट में हमने कंडक्ट किए होंगे, ईच एंड एवरी कैंडिडेट. एंड मॉक इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू आपको देना है. वैभव सर और स्टेप अप लर्न आके इंटरव्यू नहीं देगा. इंटरव्यू विल अटेंड बाय द कैंडिडेट ओनली. तो मॉक इंटरव्यू भी आपको अटेंड करने हैं. एवरी मंथ देयर इज अ मॉक इंटरव्यू फॉर टॉपिक बाय टॉपिक. रियल इंटरव्यू क्वेश्चन मैं हर एक सेशन में डिस्कस करता हूं. रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस के मोस्ट ऑफ द सेशन में तो मैं ये भी बोल देता हूं कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आएगा. आई विल गिव दैट गारंटी, बिकॉज फ्रॉम 6 years वी हैव दैट नोट्स, वी हैव दैट कलेक्शन कि क्या क्या चीजें हुई है. मेरे पास वो पूरा कलेक्शन है जो अभी तक मेरे 300 प्लस कैंडिडेट प्लेस हुए ना, उनके ऑल द क्वेश्चंस वी हैव. मैं एज अ इंटरव्यू पैनल वर्क कर रहा हूं, तो मेरे पास मेरे क्वेश्चन है, मेरे फ्रेंड्स वर्क करते उनके भी क्वेश्चन है. दिस स्टेप अप लर्न इज अ फैमिली ऑफ नियर अबाउट 3000 प्लस कैंडिडेट्स. तो उस लेवल पे जाके हम डिस्कस करने वाले, उस लेवल पे जाके हम प्रिपरेशन करने वाले. इंटरव्यू क्रॅक तुमच्या पहिल्या 10 सेशन मध्येच होतो. पायथॉनचे मी 10 सेशन घेणार ना, फर्स्ट 10 सेशन विल हेल्प यू टू क्रैक द इंटरव्यू. मेरा फोकस इंटरव्यू क्रैक करना नहीं है. मेरा फोकस है कि माय कैंडिडेट शुड वर्क इन आईटी इंडस्ट्री फॉर एटलीस्ट 5 to 10 years. नेक्स्ट 5 to 10 years आपको आईटी इंडस्ट्री में वर्कआउट करना है. दैट इज माय फोकस. प्लेसमेंट होतात रे, मॉक इंटरव्यू अँड रियल टाइम इंटरव्यू क्रॅक होते. आजच सांगतोय, शेवटच्या दिवशी तेच सांगणार आहे सर. लास्ट डे ऑल्सो द सेम कि मॉक इंटरव्यूज अटेंड करो. फर्स्ट डे से बोलूंगा. आणि इथं तीच गोष्ट ना, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड. मैं फर्स्ट डे को स्ट्रिक्टली यही मेंशन करने वाला हूं. अगर आपको इंटरेस्ट है देन ओनली टेक द एडमिशन टू दिस ऑटोमेशन कोर्स. अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, सर मुझे मॉक इंटरव्यू नहीं देना है, रिज्यूमे प्रिपरेशन नहीं करना है, नो वरीज, इट्स युअर पर्सनल डिसिजन. तुम्ही
ऍडमिशन घेणार आहेत म्हणजे काहीतरी अमाउंट स्पेंड करणार आहेत, उसकी वैल्यू आपको होनी चाहिए. उसकी वैल्यू तो मैं करने ही वाला हूं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी वैल्यू भी आपको होनी चाहिए कि सर जो चीजें आप बताने वाले हो वही आपको फॉलो करना है. अगर मेरे सेशन आपने फॉलो किए तो 100% श्योर यू विल गेट द प्लेसमेंट आफ्टर 5 मंथ. मी नाही देणार, इन्स्टिट्यूट पण नाही देणार, पण होणार आहे. देन अगेन will provide the non-technical guidance for the HR and technical round, how to crack the HR interview, how to crack the technical round, that guidance also I will provide. And again जितने भी कैंडिडेट्स प्लेस हुए हैं वो आपसे इंटरेक्शन करते हैं ड्यूरिंग द मॉक इंटरव्यूज, वो भी आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है. So this is about the institute, this is about the trainer. And if you have any question, please let me know. So I will discuss that question. I am happy to discuss all the questions. Sir, doubt clear होतील का? सेशन शुरू होईल का? Yes. From first day आपके लिए ये डेमो सेशंस होंगे. But for me it is not the demo session, it is the starting of actual syllabus. आपल्याकडे भरपूर सिलेबस आहे, तो आपल्याला स्टार्ट करायचा आहे फास्ट. सर टाइमिंग, यस इट्स इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि टाइम क्या होगा. अगर कोई वर्किंग कैंडिडेट्स है तो उनके हिसाब से हम टाइम स्वैप करेंगे. इफ यू आर नॉट वर्किंग कैंडिडेट देन एनी टाइम इज फाइन. बट फॉर दिस न्यू बैच देयर इज अ डिफरेंट स्लॉट्स आर अवेलेबल. मॉर्निंग 8 AM इज द फर्स्ट स्लॉट 1 आवर के लिए. 10:30 morning is again one slot, and evening 8 PM. वीकली बैच है तो डेली आपके सेशंस होंगे. So these 3 slots are available. Out of these 3 slots you need to choose. Sir 9 AM, no 9 AM already बैच शुरू है. For 1 month at least you need to go with these 3 slots. इसमें से जो आपकी चॉइस है उस पे आप सेशन स्टार्ट करोगे. Because tomorrow Monday, so we'll start the session at 10:30. If you are not working candidate, please let me know. If you are working candidate, please let me know. Everyone is working or not working? Anyone? Yes. Any working candidates are there? Yes. Audible to all. Audible. आहेत का? गेलेत? Yes. Audible. Kishori, Shraddha, Rushikesh, Shekhar. Audible to all. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Any working Yes, sir. candidates? Any working candidates are there? No one is working? Yes. No, sir. Okay, then we'll go with the slots. No, अगर working candidate, please let me know. Anand English, okay. We can start at 8:30 in morning. Yes, that also fine. Everyone is fine for this. Please let me know. Okay. So this is for the today's session. Doubt, sir. Course syllabus I have mentioned. So tomorrow we'll discuss this course syllabus in detail. Sir, course का duration क्या होगा? 4 month. ऑफिशियली 4 मंथ मेंशन कर रहा हूं, बट मैंने ये चीजें यही डिस्कस कर रहा हूं, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक आप कोर्स अटेंड करोगे. न्यू बैच आल्सो यू आर गोइंग टू अटेंड. अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है सर, यू कैन अटेंड. recordings also available for your batch. Recording duration once this batch is started from today 013/2026 to 013/2027. 1 year recordings आपके अवेलेबल होती है, बिकॉज दैट पोर्टल विल डिलीट रिकॉर्डिंग आफ्टर 1 year. तो आपके सेशन मिस हुए तो 1 year के रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, टोटल 1 year टाइम. और आई विल गिव दैट गारंटी कि उस 1 year में आपका प्लेसमेंट हो जाता है. या गोष्टी आपण प्रोव्हाइड करणार आहेत. टाइम
Let's discuss this time. For the time being, I'm mentioning for tomorrow it will start at 8:30 am. Everyone audible, please let me know. अगर ये time match नहीं हो रहा है तो I will change the time. Please response. Yes. New batch candidate. All are fine for 8:30. Yes. Yes, sir. Okay. Fee structure you will discuss with Somnath and Akshay in group. These two people are available. And again on portal the fee structure is available. Prerequisite. मेरे लिए prerequisite है graduation complete होना चाहिए. Any graduation. BSc, MSc, MCA, BE, BTech, whatever the graduation. Because nowadays आप मार्केट में जाओगे तो आपको ग्रेजुएशन ही दिखेगा. लेट मी चेक विद द लाइव ओपन जॉब. सपोज आपने सर्च किया है नौकरी और नौकरी पे ही आपको जॉब मिलने वाला है. लेट मी सर्च फॉर द पाइथन ऑटोमेशन. लेट मी सर्च फॉर द पाइथन ऑटोमेशन जॉब. नौकरी पे पाइथन ऑटोमेशन जॉब जो मैंने सिलेबस में मेंशन किया है वही सेम आपको हेल्प आउट करेगा फॉर सर्चिंग द जॉब. फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पाइथन, एआई, डेटाब्रिक्स, मायक्रोसॉफ्ट. ग्रॅज्युएशन काय इम्पॉर्टंट आहे बघा. कुठल्याही जॉबला ह्या गोष्टी असणार आहेत. म्हणून मी म्हणतोय की एनी ग्रॅज्युएट आय रिक्वायर्ड, बैचलर और मास्टर, एनीथिंग. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप नॉन टेक्निकल टेक्निकल बैकग्राउंड से होने चाहिए. बिकॉज अदर थिंग आई विल टेक केयर. बट आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. दैट इज द प्री रिक्विजिट. कोडिंग नॉलेज नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर. जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हो. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पाइथन, software engineering Python, same. Again, for tomorrow also we'll discuss कि how to deal with this one, how to hit the market. सर ऑटोमेशन के लिए जॉब कैसे सर्च करना है. पाइथन ऑटोमेशन इंजीनियर आप अगर आप सर्च करोगे पाइथन टेस्ट इंजीनियर एक्सपीरियंस एनीथिंग. पुणे के लिए सर्च कर रहा हूं. चलो पुणे, दिस इज द लाइव जॉब ओपनिंग. क्यूए इंजीनियर मेरे कोर्स में अवेलेबल है सर. ऑटोमेशन मेरे कोर्स में अवेलेबल है. एआई रिग्रेशन विल कम टू द ऑटोमेशन साइड. एआई रिजोल्यूशन दिस इज अवेलेबल इन माय कोर्स. हेक्सावेयर की ओपनिंग भी दिखाता हूं. नेक्स्ट वन, एपीआय टेस्टिंग आपल्या कोर्स मध्ये आहे रे. पाइथन एपीआय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑटोमेशन ऑलरेडी अवेलेबल इन माय कोर्स. बिकॉज मैंने फर्स्ट डे वही मेंशन कर रहा हूं. जो आपका कोर्स है that course is going to match the industrial demand. GitHub रोबोट फ्रेमवर्क नहीं है आपल्या इकडे. पायटेस्ट फ्रेमवर्क है. टेस्ट एनी जॉब ओपनिंग आप अगर देखोगे 3 years 4 years 5 years एक्सपीरियंस को तो आपको यही प्रोफाइल दिखेगी. एआई तो है. सेलेनियम सर मेरे कोर्स में अवेलेबल है. डेवऑप्स टूल मेरे कोर्स में है. पाइथन है. एपीआई टेस्टिंग भी मेरे कोर्स में अवेलेबल है. ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यूए 100% मैच. नेक्स्ट वन, इंफोसिस ऑटोमेशन अवेलेबल है सर मेरे कोर्स में. सेलेनियम भी मैं लेने वाला हूं. पाइथन है, पाइथन टेस्टिंग है, पाइटेस्ट है, सॉफ्टवेयर. लाइवली क्यों दिखा रहा हूं आपको. मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि जो सिलेबस हमने डिजाइन किया है क्या वो सिलेबस आपके इंडस्ट्री को मैच करता है. फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. एंड दिस जॉब इज पोस्टेड वन वीक अगो. इंफोसिस सेम. अगेन नेक्स्ट लेवल पे जाता हूं सर. सॉलिडिक्स पार्टनर. हाँ, एपीआई टेस्टिंग मेरे कोर्स में है यार. ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम पायथन एसक्यूएल नाही आहे आपल्याकडे. एसक्यूएल प्रिव्हियस बॅचेसला होतं. लागत असेल तर रेकॉर्डिंग सहित दॅट ऑल्सो आय विल प्रोव्हाइड. रिग्रेशन टेस्टिंग मेरे कोर्स में. दिस अगेन पाइथन टेस्टिंग
पांडाज मेरे कोर्स में आता है एपीआई ऑटोमेशन के लिए। रीडिंग द फाइल में पांडाज यूज करता हूं। रोबोट फ्रेमवर्क ऑटोमेशन मैच क्यों करवा रहा हूं? अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग कि क्या मेरा सिलेबस इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से मैच होता है क्या। अगर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से मैच नहीं होगा तो नो नीड टू गो विद दिस सिलेबस। इंफोसिस ऑटोमेशन टेस्टिंग, एपीएम, पायथॉन, मोबाईल टेस्टिंग नहीं है आपल्याकडे, मोबाईल टेस्टिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर है। दिस जॉब इज फॉर पायथॉन एपीएम ऑटोमेशन इंजीनियर। UI automation, API automation, database automation, CI/CD, all you will find out these type of job। तो आपको भी रिसर्च करना है तो रिसर्च कर सकते हो। कैपजेमिनी में ओपन पोजीशन चल रही है। एजूर रेस्ट एपीआईज, रोबोट फ्रेमवर्क, सेलेनियम, पाइथन, रेस्ट एपीआई सॉफ्टवेयर, सेम थिंग आई एम मेंशनिंग। क्या मेरा कोर्स इस रिक्वायरमेंट को मैच करेगा? यस सर, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट यू प्रोवाइडेड उस पे ही कोर्स मैच आउट करने वाला है। आप चले जाओ कोई भी इस पे, गिटहब मेरे कोर्स में है, पायथॉन तर आहेच रे, सॉफ्टवेयर तर आहेतच। सी एटलीस्ट 50% तो मैच होगा। ऑटोमेशन, एपीआई टेस्टिंग, हाँ सर हम एपीआई टेस्टिंग इज द एक्सपर्ट टॉपिक। यूआई ऑटोमेशन, एपीआई, इसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग ग्रूवी स्क्रिप्ट नहीं है। अगर देखना है तो CI/CD पे ग्रूवी स्क्रिप्ट हम लिखते हैं। पाइपलाइन क्रिएशन, इफ रिक्वायर्ड वी विल टीच दैट आल्सो। CI/CD जेनकिंस। सो पाइथन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से रिलेटेड जो मार्केट में जॉब ओपनिंग है नाउ अडेज, मैंने बस ऑटोमेशन सर्च किया है, दिस आर द जॉब ओपनिंग्स। डबल 1 3 4 4। तो नौकरी प्रोफाइल पे हिट कैसे करना है दैट आल्सो आई विल टेल यू। जॉब अगेन अगर आपको देखना है तो लिंक्डइन इज अगेन द बेस्ट ऑप्शन, जहां पे आप सर्च कर सकते हो लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन इज अगेन वन प्रोफेशनल नेटवर्क जहां पे भी आप सर्च कर सकते हो कि पाइथन ऑटोमेशन जॉब ओपनिंग्स। लॉग इन करने बोलेगा यार। यस ओके, आई एम गोइंग टू लॉग इन हियर ओनली माय प्रोफाइल। पाइथन ऑटोमेशन, I will showcase what are the job openings available। सिलेबस मध्ये आहे, हा पायथॉन तर आहे सर, सेलेनियम पण आहे सर। आणि सी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड CTC 18 LP। these job openings are going on, उसको ही मैं मेरा सिलेबस मैच करवा रहा हूं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि सिलेबस इज डिफरेंट एंड जॉब ओपनिंग्स आर डिफरेंट। लेट मी चेक विद द पोस्ट, वॉट एवर द पोस्ट अवेलेबल ऑन द लिंक्डइन हायरिंग, यू कैन गो विथ दिस वन। जेवढ्याही जॉब पोस्ट आहेत त्या आपल्या सिलेबसला मॅच करतायत का ते तुम्हाला चेक करायचं। बिकॉज ओनली टेकिंग द सिलेबस विल नॉट हेल्प यू, ओनली टेकिंग द सिलेबस विल नॉट हेल्प यू। मेरा फर्स्ट टारगेट है कि कैंडिडेट प्लेस होना चाहिए। अगर आपको फिर से कुछ चीजें मिस आउट हुई है प्लीज लेट मी नो, आई विल डिस्कस इन डिटेल। अगेन फ्रॉम टुमारो साइड विल स्टार्ट विद द एक्चुअल डिस्कशन ऑफ कोर्स। ठीक है सर, नोट्स पाहिजे असतील तर नोट्स अगेन द ऑन डेली बेसिस आई विल शेयर द नोट्स। आपको कोड भी चाहिए तो आपकी बैचेस की ऐसी एक रेपोजिटरी भी क्रिएट होगी जहां पे ऑल दी प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे, ऑल दी नोट्स अवेलेबल होंगी। प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियसली वी हैव द ड्राइव एंड उस ड्राइव पे बैचेस वाइज लेक्चर्स होते थे। Suppose this is the Python automation batch that is going on. Let me go with the
PT completed batch PT 11. So previously आपके पास पाइथन, जहां पे ऑल द पाइथन सिलेबस, पाइथन रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होते हैं। मैनुअल टेस्टिंग, तो वहां पे ऑल द मैनुअल टेस्टिंग के रिकॉर्डिंग्स होंगे, लाइव लेक्चर प्लस रिकॉर्डिंग, यूआई ऑटोमेशन। अभी मैंने इस यूआई ऑटोमेशन में दो पार्ट में डिजाइन कर दिया है। सेलेनियम के लाइव लेक्चर्स होंगे फॉर योर बैच, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर प्ले राइट, तो उसके मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगा, ओनली प्ले राइट के। अदर रिकॉर्डिंग कुछ नहीं देने वाला, ऑल विल टेक बाय मी ओनली। मैं ही फुल सिलेबस कंडक्ट करने वाला हूं लाइव लेक्चर्स में। एपीआई ऑटोमेशन फोर्थ पार्ट, जेन एआई, जो एआई पे आप यूज करोगे, प्रोजेक्ट इज अ 6 पार्ट, असाइनमेंट एंड नोट्स। हाँ, अगर आपको लाइव नोट्स भी चाहिए, सर मुझे हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, तो हैंड रिटन नोट्स आल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। सी, this is the previous batches notes, handwritten notes. I have the handwritten notes also. बट मेरे नोट्स अगर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो सर उसमें से बस आप नोट लिखोगे? नो, आपको रिकॉर्डिंग्स देख के खुद के नोट्स क्रिएट करने। इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो आई विल प्रोवाइड, ऑल द इंटरव्यू प्रोग्राम्स, और आई विल गिव दैट गारंटी कि इसमें से ही आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं। ऑडिबल? यस। So these are the, we have whole material, oral questions, whole material we have. हाँ, अभी मैं ड्राइव पे नहीं करने वाला हूँ। यू हैव योर ओन पोर्टल। सर पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है, आई विल शेयर द वीडियो ऑफ दैट आल्सो, कि कैसे पोर्टल पे लॉगिन करना है, पोर्टल पे इस कोर्स को सिलेक्ट कैसे करना है, कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें होगी, उसका सिलेबस कैसे होगा, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल। लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे, एंड थ्रू द मोबाइल also you are going to attend. So this is our actual syllabus, जहां पे मैं पाइथन को कंडक्ट करने वाला हूं। मैनुअल टेस्टिंग, यूआई ऑटोमेशन, 2 ऑप्शंस, एपीआई ऑटोमेशन, डेटाबेस टेस्टिंग, इसका ऑप्शन भी है। डेटाबेस अगर करना है तो रिकॉर्डिंग आल्सो वी हैव। वेब स्क्रैपिंग सेम कोर्स में होता है। एआई टूल्स, CI/CD, दैट इज द जेनकिन, गीट, जीरा, आजाइल मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लेसमेंट सेशंस। So this is the whole syllabus. मैं फर्स्ट डे को ही मेंशन करूंगा, जो सिलेबस में कंसीडर करने वाला हूं वो एटलीस्ट 6 इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स का सिलेबस होगा। असं नाही है की बेसिक पायथॉन झालं सिलेबस संपला, नो। जब तक आपको प्रैक्टिकली सिलेबस सिनेरियोस अंडरस्टैंड नहीं होंगे, तब तक आप कोर्स को एंजॉय नहीं करोगे। तो मेरा फर्स्ट डे से कंसीडर मैं यही कर रहा हूं कि यू शुड अंडरस्टँड। हा सर, वैभव सर जे शिकवताय ते अंडरस्टँडच होत नाहीये, अशा पण गोष्टी होतात, त्या होत असतील, प्लीज लेट मी नो, प्लीज इंस्टिट्यूट लेट अस नो, दे विल टेक केयर। इफ नीडेड दे विल चेंज द ट्रेनर आल्सो, इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको चीजें अंडरस्टैंड हो रही है, अगर आप सेशन एंजॉय कर रहे हो, तो वेल एंड गुड। एंड अगेन मेंशनिंग रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट साइड, रिगार्डिंग द फीस साइड, प्लीज डोंट मेंशन इन सेशन। आपके पास ये 2 लोग अवेलेबल है, सोमनाथ सर, अक्षय सर, दे विल टेक केयर अबाउट द institute, they will take care about the all the fees and registration process. These 2 people are available, अक्षय सर, सोमनाथ सर। अगर इनके नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ग्रुप में एडमिन जो भी है वहां पे इनके नंबर्स अवेलेबल है, they will take care regarding registration, because we have the dedicated team, separate team है। technical side separate team, management side separate team, admin team is there, HR team is there, they will take care। ठीक है, मेरा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियर होना चाहिए। मैं सेशन में आऊंगा, टेक्निकल साइड आई विल डिस्कस,
अगर टेक्निकल साइड में डाउट है तो वो डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। एंड इफ पॉसिबल आपके पास लैपटॉप है, वाईफाई है, इफ पॉसिबल प्लीज ज्वाइन थ्रू द लैपटॉप। लाइव प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो ऑन द स्पॉट आप सॉल्यूशन सॉल्व आउट कर सकते हो। चलो, दिस इज फॉर टुडेज सेशन। सो टुमारो एट 10:30 we'll start our next session. चला, काही डाऊट असतील तर परत विचारू शकता। एनीवन? किशोरी, ऋषिकेश, श्रद्धा, हर्षल, any other doubt? शिवानी?